Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in this session of Modern India, General Studies perspective, we are going to find and we are going to see whether we are able to enjoy and see certain elements when we were writing, whether we have missed out on that or whether we are able to work on the structure or whether we are able to bring certain more quote or maybe some fact. So, what were the contributions of the moderate in the formative stage of INC? Instrumental in laying the roots for the freedom struggle, very true, in an institutionalized manner with the buoyancy provided by the revolt of 1857. So I think formidable introduction, enough start, and equally, analytical and also fact. No more required, so it is a apt, what we can say. Initially, the terminology of moderates and extremists was not present. All the member of INC were on the same page. ये बहुत अच्छा line लिखा. Contributions founding members provided an organized direction and leadership to the movement, showcased melting pot of leaders from diverse culture, places, traditions. Uh, However, lower class, or you can say, lower class and the rural class was absent. It was mostly intelligentsia, middle class, especially maximum जो थे वो कौन थे शुरू में. They were all जर्नल, जिसे आज की डेट में आप जर्नलिस्ट कह सकते हो, यानी they were running newspaper and many of them were lawyers. They rose like a pillar of strength and truth against the British rule, which reflected the courage, opened the gates for mass movements in future, with Swadeshi being first. Without moderates, no extremists would have been on emerged. So I think in terms of innovativeness, in terms of light-hearted approach, in terms of bringing something subtle, these are very beautiful. Only thing is that we could have we can think of in examination, we can make sentence little short, maybe 10% short, and one or two keywords, as when we see because the answer must not be completely innovative also, answer must not be completely general also, so it should be in the middle, so it is obviously having all the elements. कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो मुझे नहीं मिला. You could have said that in legislature, in legislature also, moderates का बिना legislature की बात किए हम वो पिलर नहीं छोड़ सकते. तो आपने बहुत lucid है, because all the points are almost innovative and self thinking based, but we have to be cautious and careful in using so many similar sounding ideas. वो फिर प्रेज जैसा लगने लग जाता है, तो वो थोड़ा सा रोकना है. कि अगर आपको रोकना है अपने आप को, कि मैंने अगर एक में बता दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे लास्ट पॉइंट में है, तो उससे पहले हमने अगर कहीं दो तीन बातें उनके डायमेंशन दी, तो रोको और फिर फैक्ट को ले आओ, तो दैट विल बी वंडरफुल. सो मॉडरेट्स, लाइक यू सेड, stepping stone to provide stability. And I think क्योंकि examiner is also able to understand that now you know the pattern in the mind and you are able to replicate that. तो ज्यादा रेप्लीकेट नहीं करना है, हमें पावर को रिस्ट्रेन रखना है. So, I hope you are getting my point. We will discuss it further once it is over. Explain the part played by Annie Besant in Home Rule Movement. Was one of the eyes of Home Rule Movement, along with wonderful start. Again, very perfect, not a problem. She adopted the constitutional and peaceful method, debate, discussions, libraries, very good. More widespread and not an Indian movement, still work for an Indian cause of independence. So this I would like to disagree that it was an Indian movement, though Annie Besant and Tilak both when are coming together, then it is a pan-Indian movement. So Annie Besant kept the flag of so-called All India movement in her hand, though it will not be going to all parts of India definitely. बट लेकिन उस टाइम के हिसाब से जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, रेलवेज लिमिटेड है, पोस्टल सिस्टम भी लिमिटेड है, एक्सेस ही नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो फिर आप अपने आप को थोड़ा चेंज करोगे. सर हाँ, ये मैंने इसको ऐसे लिखा है, वाइड स्प्रेड मूवमेंट के साथ है, वर्ड मिस हो गया तो मैंने वाइड स्प्रेड के नीचे लिख दिया. बट एनी बिसेंट वाज नॉट एन इंडियन ना, तो इसलिए हाँ, शी वाज आई नॉट इंडियन. नॉट अच्छा, इन नॉट नॉट एन बीइंग एन इंडियन, इंडियन, ओके. शी स्टिल वर्क हाँ, फॉर ये इंडियन. एलिमेंट बिल्कुल सही है. हाँ, शी वाज नॉट एन इंडियन डेफिनेटली. तो रादर देन सेइंग नॉट एन इंडियन, आपको लिखना चाहिए था बीइंग नॉट एन इंडियन बट प्रमोटिंग इंडियन वैल्यूज या प्रमोटिंग इंडियन कल्चर. तो हमें अधूरा क्यों बताना है, डबल बता हाँ. दिया. जनरेटेड मास अवेयरनेस इवन इन रिमोट एरियाज विद पैम्पलेट्स एंड बुक्स. तो अब एंड होता है यहाँ पे, तो आप बोलते कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वर इनग्रेन्ड बाय हर. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वही है, बस हो गया, बस. In what ways did the international events in the late 20s
of the present century, that means 20th century obviously, influenced Jawaharlal Nehru's radical views? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. The lava of radical ideas bursted with the volcano of Innova. अरे बाप रे. Good try. चलेगा, एक ऐसा भी चलेगा. So very good the way you presented international events, anti-colonial movements in Egypt and Turkey, Great Depression. इसमें Russian Revolution तुमने लिख ही दिया, thank God. So implications, disillusionment with the Western ideas and democracy, for example, France, liberty, equal justice, and the faith decline, inspiration from Bolshevik Revolution, erosion in Western capitalism, established independence of Indian League. बहुत सही है. आप बस इतना थोड़ा सा हल्का सा और लिखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो नेहरू को समझ में आ गया था कि मतलब यू नो दे आर मिलिट्रिस्टिक, वेस्टर्न वर्ल्ड इज मिलिट्रिस्टिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. बस ऐसे करके एक मतलब अच्छा किया. लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पे आओ तो मतलब ये जो लावा ऑफ रेडिकल आइडिया बोल के नहीं कुछ ज्यादा हो गया. तो ठीक है, मतलब दिस इज नॉट योर स्टाइल, बट देन चलेगा. तो ठीक है, मतलब तुमने लावा और आइडिया बना भी दिया. तो आई थिंक इसका में ज्यादा फायदा नहीं होगा. अटेंशन जरूर जाएगा, एग्जामिनर थोड़ा सा लाइट फील करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स देगा वो मेरे ख्याल से जो आना है वो बिना लावा दिखाए आ जाएंगे. चलिए आगे. What do you know about the following? Tana Bhagat, tribal, non-violent, nature and बिल्कुल ठीक है, done. You could have just written in which area it was active. Social religious reform movement by Jyotirao Phule, also known as Truth Seeker Society, plays an upliftment of women. अब आपने लेकिन इसमें दलित दलित या फिर ऑप्रेस्ड क्लास की बिना बात किए आधा नंबर हमारा खा जाएगा. तो महात्मा ज्योतिबा फुले तो दलितों के मतलब अंबेडकर साहब के तो तो गुरुज थे. तो ये हम मिस नहीं कर सकते. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं कोई बड़ा पिलर मिस तो नहीं कर रही. चलिए आगे. What are the following? Where are the following located and where? The Lothal Indus Valley Civilization site in Gujarat, known for dockyard, believed to be an important port, settled done. Lumbini site in Nepal, where Lord Buddha was born, and it also has a Lumbini done. अब ये Velen Lenni, I also have to see. I don't remember. Maybe some cave site or something like that, but I don't remember. I have to see this. Okay, NG Ranga, freedom fighter who fought for the. अब now this is a very good example of NG Ranga. So NG Ranga साहब के बारे में मान लो आपको नहीं पता तो ये चलेगा, लेकिन हमें पता क्या होना चाहिए. इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट उन्होंने चलाया. सोचिए आप, यानी किसानों के मसीहा, किसानों के फिलोसोफर, किसानों के गुरु, किसानों के इकोनॉमिस्ट, किसानों के साइंटिस्ट, सब कुछ थे. ऑल इंडिया किसान सभा के एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, या उनके गाइडिंग लाइट कह लो छोटे वर्ड. एनजी रंगा यूनिवर्सिटी भी है आंध्र प्रदेश में, और उनका जो गांव था वहां पे उन्होंने इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था. तो बस इतना बहुत है. सी वाई चिंतामणि वॉज अ मॉडरेट लीडर, freedom moderate leader, freedom fighter, a lawyer I believe so if I'm not wrong, and he was promoting वही moderate वाले ideas मेरे हिसाब से उन्होंने. विलियम वेडरबर्न was one of the foreigners यूरोपियन, बिल्कुल ठीक बात है. चलो, लेकिन विलियम वेडरबर्न was बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप ये एक वर्ड लिख सकते थे, ही इनिशिएटेड डिमांड्स ऑफ आईएनसी ना, तभी तो उसको बनाया वो. मतलब कम से कम बने हैं तो आपने ये तो बता दिया बने हैं, लेकिन आपके सोच रहे उस गोरे को क्यों बना दिया. इसका मतलब वो गोरा हमारी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था. इतना तो बताना पड़ेगा. नरेंद्र देव सोशलिस्ट स्कूल, सोशलिस्ट स्कूल ऑफ फ्रीडम फाइटर. ओके, स्टूड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. हाँ तो इंडियन इंडियन क्या था यार वो, अरे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी, आचार्य नरेंद्र देव, गिवन द टाइटल ऑफ आचार्य. एम आर जयकर, again MR Jayakar was a very important leader. He promoted Hindu nationalist idea, that a supporter of Tilak, and he followed Tilak ideas. ऐसे करके आता था. मदनलाल ढींगरा was मदनलाल ढींगरा was just, ये बात आपकी ठीक है, मेंबर ऑफ गदर पार्टी, लेकिन उन्होंने कर्जन वाइली को मारा एट ए यंग एज. ये बहुत बड़ी बात है. मतलब डॉक्टर बनने गए थे लेकिन उन्होंने उसको मार के शहादत दी. तो इसीलिए मैडम बीकाजी कामा ने मदन तलवार नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया. ये बड़ी बात है. चाहे भले कुछ मत बताओ, काम की एक बार सॉलिड चीज बताओगे नंबर आएंगे. मदन तलवार, सोचो आप, उम्र ही क्या थी बेचारे की. ही इज आवर इंस्पिरेशन. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उदारवादियों का क्या है योगदान? भावना जगाना, जन जागरण बढ़ाना, संवैधानिक सुधारों का मार्ग, ये पॉइंट बहुत अच्छा है. पत्र लिखकर शांतिपूर्ण समस्याओं को समझा, आयोजन, ये वो ठीक है.
परिणाम राष्ट्रीयता और एकता, संवैधानिक तरीका, ये तरीका पे तरीके में बड़ी की मात्रा आती है। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी। अच्छा, डब्ल्यू सी अंग्रेजी में लिख दूंगी, बनर्जी हिंदी में लिख दूंगी, मजा हो रहा है? काके का ढाबा है ये। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। चलिए आगे। 1916 एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। संपूर्ण भारत में होम रूल आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, स्थानीय शाखाएं बनाई। मेहनत तुम कर रही हो, ठीक है। समाचार पत्र, स्वशासन, आंसर लिख लिख के आदमी डिसिप्लिन होगा, कोई चारा नहीं है। महिलाओं के अधिकारों को भी लड़ाई लड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रयोग किया। ठीक है, कहानी लिख के चलेगा, कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने विचारों में परिवर्तन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना की जासूसी के बाद। ये भी नहीं है जो उन्होंने लिखा था वो ज्यादा पर्टिनेंट था पहले वाला, लेकिन आपने भी ठीक लिखने की बात की। ठीक है, आंसर ऑन ट्रैक है, लेकिन वही बात है, लड़ाई बहुत ज्यादा है तो उसमें डूब जाएगा। और ज्यादा स्पष्ट, और ज्यादा क्लियरिटी, और ज्यादा सिंपल लिखना पड़ेगा। ताना भगत, आदिवासी आंदोलन, ब्रिटिश सरकार, स्थानीय जमींदारों को शोषण के विरुद्ध, आई थिंक ऑन ट्रैक, विरोध में सत्याग्रह। उसके बाद आपने सदस्य समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सामाजिक सुधार, रूप स्थापना, सत्य की खोज, धर्म का सही अर्थ में खोज। बार बार एक चीज नहीं लिखनी है, ब्राह्मणवादी सोच का विरोध, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, सब ठीक है। चलिए, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, प्रसिद्ध। चलिए चलिए चलिए। यह अशोक द्वारा, वो हमने पॉइंट पढ़ लिया। मदनलाल ढींगरा एक क्रांतिकारी जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए 1909 में फांसी की सजा दी गई। उनके द्वारा उपनिषद का विरोध किया गया तथा राष्ट्रवाद की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाया गया। फेयर इनफ, बट यू ऑल बोथ ऑफ यू नो दैट वेयर वी नीड टू पंच सो क्लियरली। तो मानसी, आप पहले बोलिए। तो मेजर पॉइंट एक तो जहाँ पे मैं मेरे आंसर थोड़े फिलोसफिकल या ज्यादा इनोवेटिव से आइडियाज हैं, तो वहां पे मेरे को पहले बिल्कुल फैक्ट। नहीं थे, अब हुए हैं वो, तो अब थोड़ा कम करना है। हाँ, तो वहां पे मेरे को फैक्ट्स से उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। डोंट, हाँ और मतलब डोंट एंजॉय टू मच, तो लाइट हाँ, हार्टेड। और शॉर्ट सेंटेंसेस पर पे अगर ऐसा काम। मैं नहीं कहूंगा। I will be very frank with both of you, and in fact, you will have the the things in front of you also. If you enjoy too much also, but then you are not overtly emotional, then also score can be there. हाँ जी। If you are enjoying, but at the हम्म। same time you are in your limits, then हाँ also score can score कैसे हम्म। भी आ सकता हाँ जी। है। लेकिन मतलब ना, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए फिर वो, अगर आर्टिफिशियल फिलोसफिकल नहीं, आर्टिफिशियल में स्कोर नहीं आता, आर्टिफिशियल में स्कोर नहीं आता, बहुत रिस्ट्रेट करके स्कोर नहीं आता, ज्यादा जी। फैल रहे हो तो स्कोर नहीं आता। हम्म। हाँ इतना जी। मांगना है, अगर वो ठीक से नेचुरली बता पा रहे हो, बड़ी से बड़ी बात को अगर आप नॉर्मल तरीके से कह पा रहे हो, तो नो स्कोर आएगा। हाँ जी सर। यही एक बड़े ऑफिसर की पहचान भी है कि लोकसभा स्पीकर से मिल रहे हैं, उनसे भी बात कर ली, राष्ट्रपति जी से भी आपका अगर अभिवादन हो रहा है, अगर आपका साक्षात्कार राष्ट्रपति जी से हो रहा है, तो अगर आपने वो भी आराम से हैंडल कर लिया, तो वही आंसर है, ऐसे ही है वो भी। हाँ जी। हाँ सर। हर चीज को नॉर्मल लेने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ। ये ऑप्शनल और जीएस दोनों जगह बहुत तगड़ी एक वो है, कैपेबिलिटी, हम्म। ये नहीं आती अच्छे से। तो इसीलिए ठीक है, नाउ वी हैव बिकम, आई वुड सेट द बेंचमार्क फॉर यू दैट टेक इट मोर लाइट, प्रैक्टिस मोर मेंटल प्रैक्टिस, और फिर हम्म। धीरे पीछे पीछे फॉलो करेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे स्क्रू को टाइट करेंगे। हाँ जी। अब ये 5 पॉइंट नहीं है कि पूरे लिख पाओगे, नहीं लिख पाएंगे, या हम ठीक लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, उससे ऊपर आ गए। हम्म। गलत लिखने का स्कोप नहीं है, गलत उतना होगा ही अगर आपका प्लेटू आ गया तो। हाँ जी। मुझे प्लेटू से बचाना है, मुझे एक आउटलेट चाहिए, हाँ। बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। दीदी आप बोलिए। सर रिपीट नहीं लिखना है सर, कुछ भी नहीं लिखना है हाँ, सर। बिल्कुल कुछ नहीं। यानी रिपीट में आपको पता है, एग्जाम में कोई पता है कि इसको बढ़ाना था, जगह जगह भरनी थी, जी सर। कुछ नहीं होगा। जी सर। जितना हो ऑनेस्टली लिखो, जी सर। और टू द पॉइंट लिखो, तो स्कोर आएगा, जी सर। पक्का आएगा स्कोर। ज्यादा लिखने का कोई मतलब, नहीं। और नेचुरली तो लिखना ही है। जी सर। जी। With these ideas, thank you very much, and we will join in the next session. And please go through all the themes, all the ideas, so that you can get the best out of your time, best of your energy. And success is always beckoning us; it is in front of us. We need to be loving, we need to be caring, we need to be happy, and we need to be committed towards it. And I'm sure somehow, somewhere, everybody gets success if we are truthful to our core objective. Thank you very much for being with Ansar Kari.